So we are discussing about AP series, right? Did you remember about general term of AP series? A plus n minus 1 ঠিক আছে রেখাটা এটা হল কি হয় n মানে হল নাম্বার অফ টার্মস n equal to number of terms n equal to first term b equal to common difference হাল্লা নম্বর বা then d is equal to common difference an is and term a is the AP series looks like a plus d a plus 2d dot 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 right একদম বিগিনিং এর আমি কোশ্চেনস বিলাক করি জুনে জুনে নাই হোৱা রিপিটিশন কৰি যাব anyway a few conditions are given that is a few conditions are given. First one is the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. তার মানে this is the taxi just like Uber, Ola, like this lemon. First kilometer fare is how much? Rupees 15 for 1 kilometer. If you decide to extend your journey more than 1 kilometer, 1 plus 1, 2 kilometer, 2 plus 1, 3 kilometer, 3 plus 1, 4 kilometer. If you decide to extend your journey from 1 kilometer to 3 kilometer, the question says for additional kilometer you have to pay rupees 8 extra for extra kilometer. So for first kilometer 15, next 15 plus 8, 23, 23 plus 8, 31, 39 and so on. That means to me message this lala. Okay. So your fares are like this 15, 23, 31, 39 and so on. So you can say this is an AP series. Let me revise the concept. When you are having one series of numbers or maybe series of variables or series of algebraic terms where there is a fixed first term and the consecutive terms are increasing or decreasing with a certain interval, popularly known as common difference, right? So this situation is an AP series. 3 more situations are given in your book. Try to solve it, try to identify whether it is an AP series or not by yourself. যদি কৰিব নোৱাৰা সুধিবা নেক্সট ক্লাছত আমি গুচি যাম ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 এটা আমি AP series বুলি কেনেকৈ পাম then here এটা মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন 1 2 আছিল 1 Roman 1 exercise 5.1 here first term is equal to 15 common difference that is equal to 8 and hence it is an AP series, right?
ऐसे ही देखना है, खुद देख लेना। रोमान 2, रोमान 3, रोमान 4 পরিগুণ কৰিলে লবা হ'ব। ৰাজক্ষী ইমান খাস লিখিব লগা নাই, লিখিব খোজা নেকি লিখা, লিখিব খোজা যদি লিখি ল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰাম। क्वेश्चन তেনেকে क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। 2 से 2 इक्वेशन कर देंगे, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि दिया से क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट टर्म गिवन, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपिसिड इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड first 4 terms a1, a2, a3 and a4. You need to find first 4 terms. Second style of first term মানে কি আছে a itself, second term is 10 plus 10, that is 20, third term is 10 plus 2 into 10, 10 plus 20, 30। सभी में तुम्हें याद है ना, ये जो a प्लस डी a प्लस डी लिखवाया था पहले, 4d होगा तो a प्लस 4 टर्म a प्लस 3d, 3 into 10, 10 plus 30 and say this is 1। This is how you can find many terms or any term of an series if you know the first term as well as the common difference। ऐसा कर सकती हो ना। फिर क्वेश्चन खुद कर लो। क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे था a इज इक्वल टू कितना था ये -1.5 और d कितना था -0.525। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग निकालो वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू ऑफ a2, a3 एंड a4, ये खुद निकालो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, बोर्ड पे मत देखो। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3। फोर्थ वाला मैं खुद करके देता हूँ, बाकी तुम खुद निकाल दो। 1.25 तो माइनस 0.25, दोनों मिला के होगा -0.75 माइनस। ये जो बाकी 3 है ना, ये खुद निकालना है। वैल्यू डालो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, आंसर निकल जाएगा -1। फर्स्ट टर्म इज इटसेल्फ -1.25, सेकंड टर्म इज दिस, यहाँ पे d दिया है, d का मतलब 0.25, दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा -1.5। नीचे आओ, नेक्स्ट वाला टर्म -1.25, नेक्स्ट तुम्हारा 2 -0.25, 1.25 -0.5 -1.75। इसी तरह से हम लोग अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहे, कितना सा भी एक सीरीज का टर्म हो, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया ना ये पूरा? लिख लो जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। যিবিলাকে ৰেকৰ্ডেড চাবা ভিডিওটো, কোৱেশ্চন বিলাক সিৰিয়ালি কৰিবা হা। মই এটা দুটা কৰি দিছো, যিখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিছো এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিছো, যিখিনি ক্লাছত কৰিব দিয়া আছে এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নাই। এনিৱে क्वेश्चन नंबर 3 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, यहाँ पे कुछ एपी सीरीज लिखा है
You have to find the first term and common difference. ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करके देता हूँ, ठीक है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। एक एंटी सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। रेमोनी बोर्डर सभा हियर फर्स्ट टर्म, second border sama first term is 1/3 common difference 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कोई भी एक टर्म सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक टर्म, बट पहला टर्म मत करना। पहले टर्म को छोड़ के कोई भी एक टर्म सिलेक्ट कर लो। मैंने दे दिया 9/3। यहां से प्रीवियस पिछला वाला टर्म माइनस करना है, तो 5/3 कर देंगे माइनस 9 - 5 4/3। अब तुम लोग ध्यान से सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कॉमन डिफरेंस वाला ये सब्ट्रैक्शन बार बार करना पड़ता है। मान के चलो यहाँ पे 10 टर्म दिया हुआ है, हम हर बार कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। कब करेंगे ये काम? जब तुम्हारा ये सीरीज एपी सीरीज है ऐसा नहीं दिया होगा। If the question does not say that it is an AP series, then you have to prove it as an AP series by finding all common difference. If they are coming equal, then it will be an AP series. Otherwise, it cannot be an AP series. But for this question, already the question says that it is an AP series. You need to identify value of A and D. We have done it, right? Okay. उसी तरह से एक क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मुझे ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे दिया है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ यहाँ पे ए कितना होगा और डी कितना होगा? जल्दी से करो। A 0.6, B 1.1। ठीक है, बाकी लोगों को करके दो। नंबर 4 कर सकते हो, इसको निकालो और मुझे बताओ कितना होगा आंसर। तुमने फोन पूरी ऐसे 40। फोन ऐसे के बारे में हाँ थोड़ी सा 1.1, 0.8, 1.1 वेरी गुड। बारे बारे उलाबो नालागे कि यानी एक बार उलाले हो बारे बारे उलाले इसमें काटे तो करो जब बारे बारे उलाबो नालागे एक बार उलाले, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी फोन इज ए क्वेश्चन। কারণ ফোন আছে নেকি রাজল কি নাই? मतलब দিলেও কারোবার প্রবলেম হয়। ওর কেতিয়া ক্লাস আছে? तो दिस इज 0.6, कोई भी टर्म उठा लो। मैंने 3.9 उठाया, यहाँ से 2.8 माइनस कर देंगे तो मिलेगा 1.1। सो मैंने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ना तुम्हें बहुत सारे मतलब 15 सीरीज दिया हुआ है। देयर आर 15 सीरीज ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स। नाउ ऑल दिस सीरीज आर नॉट एपी सीरीज। पहला काम क्या होगा, पहले देखो ये जो सीरीज दिया है वाकई में एपी सीरीज है कि नहीं। अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म खुद बनाओ। यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है ना, तो 5th 6th 7th टर्म खुद लिखना है। अब पहले हम कोशिश करेंगे कि एपी सीरीज है कि नहीं। मैंने पहला क्वेश्चन उठा लिया, कैसे लिखेंगे देखो 2 4 8 and 16 डॉट डॉट डॉट। हियर ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी निकालेंगे सेकंड टर्म। यहाँ पे डी का वैल्यू बार बार निकालना होगा क्योंकि ये एपी सीरीज नहीं है। तो 4 - 2 करेंगे तो मिलेगा 2, 8 - 4 करेंगे तो मिलेगा 4, 16 - 8 करेंगे तो मिलेगा 8। देखो डी का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। ऑल वैल्यूज ऑफ कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। कैसे लिखेंगे? सिंस ऑल values of
common difference. What is common difference? Difference between any two consecutive terms of a series. Common differences are not equal. Hence, it is not an AP. इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर एपी सीरीज होगा तो फिर क्या करना होगा, ऐसा कर देंगे। ये तो जब नहीं होगा ना, ऐसे लिखना है। और एक क्वेश्चन कर देते हैं, रुको। क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने उठा लिया 5 वाला, रोमन 5। ये वाला सीरीज देखो, 3, उसके बाद 3 प्लस रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना टर्म दिया है, 1 2 3 4। 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर गिवन। ठीक है, अब देखो हियर रेमोनी बुझी पाए ऐसे ना, ए इज 3, डी निकालना होगा तो इससे ये वाला माइनस कर दो। 3 प्लस रूट 2 से 3 माइनस क्या बन जाएगा, रूट 2। नेक्स्ट और एक बार डी निकालेंगे, इससे ये माइनस कर दो। 3 प्लस 2 माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3 माइनस रूट 2, 3 कट जाएगा। अगेन दिस इज रूट 2। इस बार यहां से ये माइनस करना, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 कट जाएगा, तो ये होगा रूट 2। अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, सिंस all values of d are equal, hence it is an AP। अब याद करो, अगर AP सीरीज होगा तो हमें और एक काम करना था, that is we need to find 3 more terms। A1 A2 A3 A4 are given। हमें क्या निकालना है, A5। A5 क्या था, A प्लस 4D। वेरी गुड। A का वैल्यू ढूंढो, कितना था A का वैल्यू, A का वैल्यू था 3 और 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, रूट 2। तुम्हें मिल चुका है 5th टर्म। 6th टर्म निकालना है, ये क्या होगा, A प्लस 5D एंड 7th टर्म क्या होगा, A प्लस 6D। तो हमने नेक्स्ट टर्म निकाल लिया है, ये तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, आई जस्ट होप ये क्लियर है। लिख लो, लिख लिया ना, समझ में आया। से आगे थोड़ी सी अलग क्वेश्चन। ठीक है, सही तो हम क्लियर इसे, ये तो लिख दिया होगा। ये क्या होगा बोलो, यस, ये 3 प्लस 6 रूट। एक्सीलेंट, चलो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, लास्ट वाला, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एपी सीरीज बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10 का। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8, जितना भी टर्म यहाँ पे मौजूद है पूरा का पूरा टर्म देखने में एक जैसा है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर यहाँ पे तो कोई चेंज है ही नहीं, दिस इज नॉट एन एपी। देखो ए वैल्यू इज इक्वल टू राइट, अब डी निकालने की कोशिश करेंगे ना, कितना भी तुम डी निकाल लो, हर बार आंसर तुम्हें 0 ही मिलेगा। कितना भी बार करके देखो, करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, 0 मिलेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, हर बार कॉमन डिफरेंस से मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, so we are getting same common difference each and every term, so it is an same term, right? So common difference is 0, this is half, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस हाफ ही होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ठीक है, आने के चांस कम है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। सो 11, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है 11 लिख लेते हैं, a a स्क्वायर a क्यूब a फोर डॉट डॉट डॉट। और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, मे बी 12, दैट इज √2 √8
√18 √32 तक करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो बुक में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 वाला करेंगे। 15 वाला करके छोड़ देंगे ये एक्सरसाइज, हम आगे बढ़ेंगे। लिखना ध्यान से देखो, लिखना मत, पहले लिख लो, लिखने के लिए टाइम देंगे। देख लो ध्यान से। सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, ए इज ए, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। What it will be? कॉमन लेंगे तो a minus 1, a square minus a is this, a square minus a is not a, twice a minus a is a square minus a is not a, this one। next this minus this, दोबारा से कोशिश करो, इस बार क्या दिखाई देगा? a square into a minus a। फिर से कोशिश करो निकालने की कॉमन डिफरेंस। अब हर बार की तरह कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, लेकिन ऑल ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। सिंस वैल्यू ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंसेस आर not equal, hence it is not an, ठीक है ना, एपी सीरीज नहीं होगा। यहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया। इसमें देखो क्या करना होगा फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे तो हियर ऐसे लिख लो। अब डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होगा, वो लोग बनेंगे ओवरस्वर्ड, 8 - 2 रूट ओवर 6 आंसर लिख देगा, जो कि है गलत जवाब। पहले 8 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? 8 के अंदर क्या है? 2 × 2 × 2, ये तो क्लास 8 में पढ़ चुके हो ना। तो ये क्या होगा? 2 √2 - √2, कुल मिला के माइनस करेंगे तो √2, क्योंकि ये जो √2 दिख रहा है यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। जैसे 2x - 1x से x मिलता है, 2 √2 - 1 √2 से हमें सिर्फ √2 और 1 √2 मिलता है, ठीक है। यहाँ से ये तो माइनस कर दिया, आप ये करो, क्या करेंगे? डी करेंगे तो √18 एंड √8। ध्यान से देखो, इसमें क्या है? 3 × 3 × 2, इसमें तो हमें पहले से मालूम है क्या है, 2। अब जिसको जिसको भी इसमें दिक्कत आ रहा है, कैसे कर सकते? शॉर्ट डिवीजन कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब 3 को बाहर निकालो, पेयरिंग बनाया तो एक बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा? ये वाला माइनस कर देंगे तो फिर से ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। हम लोग एक बार फिर से डी निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 32 से 18 माइनस करो, 32 के अंदर क्या है याद करो? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसमें हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ से 2 पेयरिंग से 2 2 बाहर आएगा, एक अंदर रहेगा, तो कुल मिला के 4 √2 3 √2 माइनस करोगे तो मिलेगा √2। क्लियर है ना कैसे √2 निकाला, कैसे डी का वैल्यू सिंपलीफाई करके निकाला। अब सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ डी आर इक्वल, hence it is an AP। ग्रामर छोड़ दो, मैथ्स का क्लास है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। अब नेक्स्ट कितना? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म बोले तो a + 4d, है ना। इसमें a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू था √2, d का वैल्यू कितना था? √2, √2 + 4 मिलके कितना होगा? 5 √2। वेरी नाइस। अब 5 √2 कैसे भी रख सकते हो, 5 को अंदर घुसा दोगे तो क्या होगा? 2 में बदल जाएगा, हाँ 50 होगा। अब तुम लोग खुद निकालो, व्हाट विल बी 6th टर्म एंड 7th टर्म, छठा और सातवां टर्म खुद निकालो। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है a6, जो कि होगा a + 5d। वैल्यू डाल के पूरा फाइनल आउटपुट निकालो।
A7 निकालो जो कि होगा A+60। कोशिश करो देखो नहीं कुपन ना लगे तो क्या होगा ये वाला क्वेश्चन। ए का वैल्यू √2, 5√2 दोनों को मिला दो, 6√2, 6 को अंदर घुसा दो, दिस 6 into 6 into 2 कुल मिला के होगा 72। यहाँ पे दिस इज √2, 6√2 पूरा का पूरा 7√2, 7 को अंदर घुसा दो, 7 into 7 into 2 ये बन जाएगा 98। इसी तरह से हम लोग कोई भी ताल का वो निकाल सकते हैं एपी होगा तो ठीक है। बाकी क्वेश्चन खुद कर लेना, इजी ही है। एपी सीरीज का 15 भी खुद कर लेना। हमें आगे बढ़ना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत करना है जो कि बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। एक्सरसाइज 8.2। कैन आई इरेज द बोर्ड? सब लोग ने लिख किया ना? For next exercise 8.2 टेंगोनी भाग के एपी सीरीज तो खोल लो मजा पे बहुत किसी को एग्जाम होते और 7.2 ना 5.2 तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला के अगल बगल घूमेगा, दैट इज दिस वन व्हिच इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एपी सीरीज। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस right at the beginning of the class। I have written this formula an is equal to a plus n minus 1d। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि a d n and an चार कॉलम बना है और 5 क्वेश्चन दिया है। हर क्वेश्चन के लिए एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग चीज निकालना है। देख पहला क्वेश्चन करने वाला है। दिस इज कैसे लिखेंगे? हियर a का वैल्यू दिया है 7, b का वैल्यू है 3, n का वैल्यू 8 है, an निकालना है। कैसे लिखेंगे? देखो we know that an is equal to ये वाला लाइन जरूर लिखना है इस। अब an हमें नहीं मालूम, a का वैल्यू मालूम है, दिस इज 8 minus 1। अच्छा इसमें an में ना a8 डाल सकते हो क्योंकि n वैल्यू कितना है 8 है ना, तो a8 डाल दो। दिस इज 7, d का वैल्यू कितना था 3 था, 7 into 3 7 into 21 कितना मिला आंसर? सॉरी दिस इज प्लस 28 आंसर मिल चुका। अब उसी तरह से नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 करना है। ट्राई करो, निजे निजे ट्राई करो। इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन था जो कि बहुत लोग कर चुके हैं, इसमें क्या दिया था? पहला टर्म था -18, डी मिसिंग था, इसमें कॉमन डिफरेंस में मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब क्या दिया इसमें? n का वैल्यू है 10 एंड an इज 0। ठीक है, we know that बहुत ही आसान, आराम से लिख दो पूरा का पूरा। an 0, 18 10 minus 1 और d मिसिंग। -18 को इधर बुलाओ, +18 10 minus 1 90, तो d निकालेंगे तो 18/9 जो कि होगा d/s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएंगे। हियर a ही मिसिंग, पहला टर्म इज मिसिंग। नेक्स्ट d वैल्यू इज -3, n वैल्यू इज 18। हाँ मैं कुछ एक बात घोड़दौड़ को नहीं शुरू बात होगी, बाकी सारे साइड होगा किसी टेंशन ना लगे ना। बस a का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, दिस इज -5, दिस इज -5।
18 माइनस 1 डी हो गया -3 माइनस इंटू प्लस माइनस 17 इज 51 तो ए का वैल्यू निकल के आएगा -5 प्लस 51 तुम बोल सकते हो कि ए वैल्यू इज Sir, तो square root value 3.5 होगा 3.5 हो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हियर a value is minus 18.9 d value is 2.5 n value is missing a and is 3.6 कैसे करेंगे देखो we know that an is a plus n minus 1 नवीन नेक्स्ट क्वेश्चन करियो पराय मतलब 18 क्वेश्चन फिलहाल फिलहाल सब 18 क्वेश्चन सब है हम तुम कर लीजिए we going to be इतनी फटाफट করে শেষ করা পরে পরে আর কিছু আমরা কোশ্চেন করব দেখতে হবে 3.6 কিবা ডাউট থাকিলে মার্ক কৰি লবা মই বুজাওতে চাই ললে হল अब ये जो -18.9 है उसको बुलाओ लेफ्ट साइड में तो ये होगा 18.9 अगर हम n-1 को रख देंगे ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 जो कि डिवीजन से निकल के आता है n-9 प्लस 1 दैट इज तो 10वां टर्म हो जाएगा 3.6 और फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन दिस इज a is equal to 3.5 यहाँ पे d 0 है d 0 होगा तो कोई भी टर्म निकालो वो सेम ही रहेगा तुम्हें पता है ना ये बात सो a n equal to a plus n minus 1 d हमें a n निकालना है दिस इज 3.5 इसमें 105 डालो या फिर 1 करोड़ डालो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि d 0 है कॉमन डिफरेंस है ही नहीं तो हर टर्म एक जैसा दिखेगा तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है ठीक है लिख लो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आगे बढ़ेंगे सबक क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं एग्जाम इन्हें का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो क्या दिया है one ABCD is given and by observing that ABCDs you have to find the 30th term. That means if you keep writing the AP series one after another term, what will be the 30th term? 30वां term क्या होगा? जैसे क्या दिया इसमें 10, 7, 4. ध्यान रहे ये वाला AP सीरीज है क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है ठीक है हम क्या लिखेंगे here जब बता रहेगा ना एपी सीरीज ऐसे दिया होगा तो हमें तो अलग से उसको प्रूव नहीं करना होगा डी निकालो इससे ही माइनस कर दो या फिर इससे ही माइनस कर दो फर्क नहीं पड़ता हमें डी का वैल्यू मिल चुका है -3 अब क्या निकालने के बोल रहे हैं 38 टर्म दैट मींस 38 टर्म बोले तो n का वैल्यू 30 है हमें 30वां टर्म निकालना है तुम्हें मालूम है ना ये 30 होगा तो इसमें कितना आएगा 29 आएगा ये चीज मालूम है ना रेगोनी की नाउ दिस इज 10 29 तो 29 होगा डी कितना मिला था -3 डाल दो -3 अब 10 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा 87 इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा -77 कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन सी था ठीक है लिखो उसके बाद दूसरा करेंगे रोमन 1 तो हो गया चल लिख लो बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था देख लो
दूसरा क्वेश्चन में फिर से एक एपी सीरीज मेंशन है जिसमें पहला टर्म हो गया -3, उसके बाद -1/2, उसके बाद 2 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि हमें दिख रहा है कि ऑल टर्म्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले -3 था, उससे बढ़ के हो गया -1/2, उससे बढ़ के पॉजिटिव में आ गया, तो नंबर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना। ठीक है, हम निकालेंगे पहला टर्म जो कि क्लियर कट -3। डी निकालो, इससे ये माइनस करो या फिर इससे ये माइनस करो, एक जैसा आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने इससे ये वाला माइनस कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, मालूम है ना ये कितना होगा 5/2। हमें डी का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, 11 टर्म, 11 टर्म बोले तो A11, A प्लस 10D होगा। A का वैल्यू ढूंढ लो, दैट इज -3। D का वैल्यू कितना मिला था रेगोनी, दैट इज 5/2। 2 से इसको काट दो, 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 कितना होगा 25। दोनों को जोड़ दो, कितना होगा +22। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिल चुका है, लिख लो बढ़िया से। एक साथ 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। जिसने नहीं किया है बोर्ड में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन सेज 2 a missing place, missing term, and next term is 26. For this kind of question, क्योंकि यहाँ पे दूसरा टर्म निकालने के लिए बोला है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। ऐसे ऐसे नहीं लिखने से भी होगा, ऐसे लिखो, हियर a is equal to 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A3 इक्वल टू 26। एक चीज मेंशन कर दो यहाँ पे, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये सबको मालूम है, लेकिन तुम्हें रेफरेंस में लिखना जरूरी है। ठीक है, कहां से A और D को यूज किया, किस पर्पज से किया, क्योंकि A D तो वेरिएबल है, वो कहीं भी यूज हो सकता है, तो इसको मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है। अब देखो A3 का मतलब कितना हो गया, A + 2D, इतना तो आता है सबको। ठीक है, अब A का वैल्यू पहले से मालूम है, दैट इज 2। ओके, ठीक है, 2D को रख दो, 2 उधर भेजेंगे तो क्या होगा -2, 2D कितना होगा 24। D निकालो, 24/2 कितना मिला, D का वैल्यू 12। हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म बोले तो A2 जो कि होगा A + D, A तो पहले से मालूम है, दैट इज 2। D कितना मिला 12, दोनों को जोड़ दो, आंसर मिलेगा 40। ठीक है ना, लिख लो। दूसरा क्वेश्चन भी कर देंगे थोड़ी ही देर में। राजर की बुझी पाइছে না নাই, আমি একো মাথা নাই যে এখানে বুঝছো নাই, পাইছা না বুঝা কিনি সব তো বসে নেই, তোমার খানা সারা মিসেবল লিখে আছে। ठीक है, कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म मिसिंग, तीसरा टर्म भी मिसिंग, चौथा टर्म दिया है 9 1/2। ये वाला क्वेश्चन करके क्लास खत्म करते हैं। देखो हियर a is equal to 5, 1 2 3 4, 4 टर्म दिया है, so this 9 and 1। हाँ, ये क्या लिख सकते हैं, 8 + 3 कितना होगा, ये होगा, वैल्यू डाल दो, ये वाला होगा, है ना। 3D का मतलब कितना होगा 19/2, उससे 5 माइनस 2 5 जा 10,
9/2 d निकालेंगे तो बच जाएगा, हमें d मिल चुका है, दैट इज 3/2। अब क्या निकालना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म, यहाँ पे लिख दिया मैंने। सेकंड टर्म बोले तो a प्लस d, a मालूम है 5, d कितना है 3/2, एलसीएम ले लो, दैट इज 13/2। तीसरा टर्म निकालो, a प्लस 2d, ये हो गया 5, d हो गया 3/2, बच जाएगा कितना होगा 5 प्लस 3, 3 होगा। तो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 से रोमन 3, 4 एंड रोमन 2, 4 एंड 5। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 से रोमन 2, 4 एंड 5। तुम लोगों ने कोई डाउट पूछा नहीं वर्कशीट से अभी तक? जो डाउट है तुम लोगों ने किया भी या नहीं किया, थोड़ी सा ठीक है, कोनो डाउट नहीं ना, ठीक है। तो 29, 29, 30, 31 इन 3 दिनों में किसी भी एक दिन तुम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम होगा 50 मार्क का, ठीक है। टाइम से पढ़ाई जो जो चीज सिखाया गया ना उसके ऊपर ही होगा, ऑब्वियसली आइबो लगे कोई दिन पर तेरे के पेपर बनो नहीं, ट्रिगोनोमेट्री आई से क्वेश्चन नंबर 4, यस क्वेश्चन नंबर 4 भी करके लाना, 5 नहीं करने से भी हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम कल देखेंगे, ठीक है, या फिर कल परसों जब भी होगा क्लास देखेंगे। हाँ फोन कर दिन तो आप